Classes. Welcome to Siddhant Saurabh classes, and this is the economic lecture, the series. And in this, we shall be talking about India's economy, and we will be comparing the India economy on with respect to various parameters. On the basis of various parameters, we shall be comparing India's economy. We will be comparing GDP of various country, various the largest economy of world with India. Then we shall be comparing GDP of India with their neighbors. Then we shall be comparing the performance of economy based on HDI, that is human development. We may be $1 trillion economy, but what about equality? What about inequality? What about social welfare? What about the clothing? What about education, health? What about minimum basic necessity that is given to every citizens? Or is there inequality that is measured in terms of SDI or per capita? And we shall also be discussing what about per capita income. Per capita website compare various economies on the basis of per capita income. So we will see in many terms India is ahead of many countries in terms of GDP. For example, India is ahead of uh, France, Germany, even UK in terms of GDP, but in terms of HDI, is in terms of per capita income, India is far behind. So let's start with first graph. GDP comparison of various countries of the world in nominal as well as PPP terms. So nominal means when we include inflation. Nominal means we are considering inflation also. We are including inflation. And what about real? Suppose we are talking about real GDP, means whatever the GDP minus the effect of inflation. If we are subtracting the effect of inflation, that is real, that is a real picture. But generally we measure economy of various country in terms of nominal only. But nominal, if we are measuring any GDP, any country GDP in terms of nominal GDP, that may not give you clear picture. For because suppose in nominal, as I said, that we are including inflation. Suppose in any country one pen is produced that cost rupees 2, and in next year 2 pens are produced, but next year due to inflation 1 pen cost became rupees 3, so 2 pens cost rupees became 6, 3 to just 6. So from this it seems that there is increase in GDP from 2 to 6, but there is a effect of inflation, because we can see that only this is in real terms there is only 4 rupees GDP. 2 to 4 there is only rupees 2 increase or 50% increase, but in terms of nominal there is from 2 to 6 rupees for there is GDP increase of 2 to 6, but in real terms there is just GDP increase of 2 to 4, because 2 into 2 4, but due to price increase 1 rupees has increased. So just I want to say that when we are saying nominal means we are including inflation. And again there is a new thing, that is purchasing power parity. purchasing power parity Purchasing power parity, we are talking about purchasing power parity. Purchasing power parity means suppose in terms of GDP USA is ahead of us. So why should we measure on the basis of GDP? Because suppose in rupees 100
In India, I can get a burger, uh, suppose, or we can get any in rupees 100, we can get a cookies. While in USA, for the same thing, we need $10. That means we need more money. $10 means 10 into 90, around 900 rupees. So we need more money. Fine. So purchasing power parity means when a, a basket of goods, a basket of goods can be uh, can be bought in various country. The price parity, the price difference, a basket of goods which can be bought in various countries. Suppose in India, and suppose let's compare in India and US. In India, the same basket of goods can be bought in suppose X rupees, while the same basket of goods can be bought in X plus 1. This means in X plus 1 we can buy more amount of goods in India. Thus, in terms of purchasing power parity, we are ahead of USA. This is just an example. We will see it by graph. So let's talk about graph first. In world, GDP is 84.7 billion. This is 2021 data about this one. The current updated data is this one. So this is the nominal GDP. This is nominal GDP line. देखो countries, what and all countries are there? USA, China, Japan, Germany, India. ठीक है, top 5 country we have chosen. In USA, so what about USA? USA nominal GDP is $30 trillion. $30 USA nominal GDP is $30 trillion. Okay, $30 trillion. And in purchasing power parity, USA is a $30 trillion. So we can see that, we can observe that both are same. But in China, nominal GDP is only 19. But in terms of purchasing power parity, China PPP and escalation is seen. We can see here by graph. USA nominal GDP is $30 billion, $30 trillion, and nominal GDP is also around $30 trillion. It is same. But in China, it's $39 trillion. Okay, first we will talk about nominal. $30 trillion USA. China, it's around it's what, 19.53 trillion dollar. It's 19.53 trillion dollar. Then Japan अराउंड वही है, जापान, उसके जर्मनी तो 4.92 4.39. देन इंडिया इट्स 4.27 4.9 4.3. देन इंडिया 4.27 ट्रिलियन डॉलर. But and this is about purchasing power parity. Means purchasing power parity, what is the significance? It provides more accurate measure of living standards. More accurate measure of living standards across countries than market exchange rate. Market exchange rate, why when we consider inflation also, the price at which we buy. So purchasing power parity gives more accurate pictures because we are excluding the inflation, uh, the buying MER, that is market exchange rate. तो यहाँ पे इसको हम इसको और अच्छे से बता सकते हैं आपको. देखिए, purchasing power parity, its significance is that, as I have said, it is about buying a basket of goods. The amount that is paid to buy a basket of goods, that is parameter is considered in purchasing power parity. And it provides more accurate measure of living standard because we are buying something. It provides living than market exchange rate. Market exchange rate, it's a concept that is let's not pay heed to it, although uh, just to make you understand, market exchange rate, we are suppose two countries are buying something, two countries that are involved in trade, they are just buying something. So MER often inflates the buying power of high income countries when where prices are high and underestimates that of low income ones.
Purchasing power parity exchange rates are relatively stable over time than market exchange rate. तो मार्केट एक्सचेंज रेट को यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी आप समझे, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में हम वी कंसिडर द इन्फ्लेशन, वी कंसिडर द रियल कॉस्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज बीइंग ट्रेडेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बट in terms of purchasing power parity, we can measure the accurate standard of living because in some amount we can buy various things, ठीक है। यहाँ पे वो है नहीं पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है टू कंपेयर वेरियस कंट्री, ठीक है। देन जर्मनी का ये नॉमिनल वैल्यू है, ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जर्मनी का 4.92 डॉलर 6.17, इट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जितना इसका जीडीपी उतना वहाँ का महंगाई है। ये बताता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना कॉस्टली है, यानी जितना जीडीपी है उतना ही, उतनी यहाँ पे मतलब उतने ज्यादा खर्च भी है, उतना महंगा भी है। 4.39 डॉलर 6.77, एंड इंडिया का नॉमिनल जीडीपी डॉलर 4.27, बट इट इज मार्केट वैल्यूज आर लेस, इट इज चीपर, वी कैन बाय मोर गुड्स इन लेस अमाउंट, डॉलर 17.36। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, ये अपडेटेड ग्राफ है और ये थोड़ा पुराना है, लेकिन ट्रेंड इसका यही है कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी को जब हम कंसिडर करते हैं तो देयर इज एस्केलेशन सीन इन चाइना। चाइना इज एट फर्स्ट पॉइंट एंड इंडिया, यूएसए इज एट सेकेंड एंड इंडिया इज एट थर्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। बट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडिया इज एट फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट यूएस सेकेंड चाइना, डॉलर 17.36 ट्रिलियन। तो So as we from this we can see that US, China, Germany, Japan, India, they are the top economies on the basis of world GDP. India is a fifth in terms of nominal GDP and third in terms of purchasing power parity. The gross domestic product we have already discussed in the last class. I have included in this PDF. Anything that is produced within the country border. Then GDP is the most commonly measured by expenditure method. I have also discussed this. Then throughout most of the world countries, GDP fluctuate with phases of different economic cycle against a backdrop for longer term economic growth. तो economic cycle मतलब ये हो गया, this is called recession, this is called boom, this is boom, this is recession. There is no demand, there is too much demand. This cycle goes on. Despite these ups and downs, the top economies are measured by GDP. Don't buzz easily from that position they hold. तो जो डेवलप्ड कंट्री होता है वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया है नॉमिनल या रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है। तो ये सब उतना जानने का, तो ये तो वही है, चाइना जो है 2000 से पहले 13th प्लेस पे था, बट इट हैज़ बीन सिटिंग ऑन सेकेंड प्लेस 2010 के बाद, और इसका एक रीज़न रहा है कि इसने इकोनॉमी को ओपन किया इंडिया से 10 साल पहले, और मोर ओवर कंट्री बिकेन टू, और 2000 इन 2020 also there was a slowdown, massive GDP drops was seen, but it recovered in 2021 after COVID-19 pandemic. Overall, countries have continued the growth. Global GDP rose to $115.49 trillion as of 2025. This is the most updated data. $115.49, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉलर 115.49, 115.49 ट्रिलियन डॉलर, 115.49, ठीक है, 115। तो इसे आप गांठ बांध लो, एकदम याद रख लो, ठीक बा। तो एक बार हम ओवरऑल ओवरव्यू दे देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स जो टॉप पे है, इसका नॉमिनल जीडीपी डॉलर 30 ट्रिलियन,
Purchasing power parity with $30 trillion. Then GDP growth 2.2%, कम ही ग्रोथ होता है. Nominal GDP per capita is 89,000. ठीक है. और क्यों, why US economy is largest? इसका it is ahead in service sector and various uh, high performing service sector in USA are finance, real estate, insurance, professional business services, healthcare, etc. It has relatively open economy, flexible business investment models, foreign direct investment in the country is very easy, world dominant geopolitical power, and it can maintain large external national debt as the producer of world primary reserve currency, dollar. US economy is at the forefront of technology in many industries. Now, currently, it is facing many threats in terms of economic inequality, rising healthcare cost, social safety net cost. Then China, it is the second in terms of nominal GDP, $19 trillion, but in terms of purchasing power parity, it's 39 ahead of USA. Then GDP growth 4.5%, nominal GDP per capita is $13.87, और यूएसए का कितना, 89,000 डॉलर, 89,000. और पर कैपिटा इनकम यूएसए अहेड. चाइना इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी इन करेंट डॉलर्स, second largest, then largest in terms of purchasing power parity. Its economy has seen historical growth in last 2 decades, 2000 से 2020. Some economists to speculate China may overtake USA. Some economists are speculating that China may overtake USA. China has progressively opened its economy over the past 4 decades. Economic development and living standards have greatly improved as government has gradually phased out collectivized एग्रीकल्चर, कलेक्टिव एग्रीकल्चर. तो चाइना में ये परंपरा चला है कलेक्टिव एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का. गवर्नमेंट इज इट सेल्फ टेकिंग ए रोल इन industrial production, agriculture. The government in China is a cooperative government, what we can say, corporate government. And moreover, due to flexible policy, industrial policy, it encourages domestic manufacturing that made China the world number one exporter. Despite these advantages, China still faces some challenges such as rapidly aging population, that one child policy that have faced backlash in China, severe environmental degradation, and these things have slowed its growth. But China has progressed because it's opened its economy over the past 4 decades. The economy was already open 10 years ahead of India, and policy like collectivized agriculture, then flexibility for market price, increased autonomy of business, foreign domestic trades, and manufacturing center of the world. Then Germany nominal GDP in current US dollar is 4.92. ठीक है. परचेजिंग पावर 6 ये वो. ठीक है. नॉमिनल जीडीपी, मशीनरी, केमिकल्स है, स्किल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं. फिर जापान के बारे में, जापान का नॉर्मल जीडीपी वही 4.39 है. उसके बाद इंडिया का 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स. देन परचेजिंग पावर पैरिटी 6.7, सो इंडिया का है $17, और चाइना का कितना था, $39, यूएसए का है 30, और इंडिया का है 17, $17. ये सब याद रहना चाहिए, 2025 मेंस में काम आएगा. नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है. हम लोग जापान पे थे, तो जापान इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इज सीन. Advanced technological know-how have built Japan manufacturing. Japan is much ahead in its technology. It's export-oriented economy. It has no raw material. It is only export-oriented economy. Japanese business are organized network of interlinked companies known as Kiretsu. So why one thing that we should notice that there are many Japanese companies. They are organized networks and of interlinked companies. Various companies are interlinked, and that model is called Kiretsu. In 1990, India, there was a decade due to Fukushima disaster. Nuclear power industry was shut down, and due to some policy of Prime Minister Shinzo Abe, Japan regained again. But still, Japan is facing aging population. In India, we know $4.27 trillion
India GDP is nominal GDP value is $4.27 trillion, and purchasing power parity adjusted GDP in current international purchasing power parity adjusted GDP is $17.36 trillion. GDP growth of India is 6.5%, and this data are from World Bank website. India is fifth largest economy in the world. Large population. India has low per capita GDP because of large population. India economy is a mixture of traditional village farming, handicrafts, booming modern industry, mechanized agriculture. India is major exporter of technology services. Business outsourcing एंड सर्विस सेक्टर मेक्स अप. बिजनेस आउटसोर्सिंग मीन्स बहुत सारा जो कंपनी है यूएसए का, फ्रांस का, जर्मनी का, यूके का, वो कुछ प्रोजेक्ट्स दे सोर्स टू इंडिया, आउटसोर्स टू इंडिया, क्या आप ये प्रोजेक्ट करके दे दो. तो बिजनेस आउटसोर्सिंग में इंडिया बहुत बूम पे है, और इन सब वजह से सर्विस सेक्टर जो है पॉजिटिव है. लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया दैट टुक प्लेस इन 1990, इट बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ. लिबरलाइजेशन मीन्स there was a license Raj for everything, every business we need to set up, we need to take various permissions, various license. So these all were removed, means we became more liberal, means you can just start a business. Single window clearance, from one single window you need to just go to one single window, and from that you will be cleared of various regulations, and you can start a business. Flexible business regulation, widespread corruption, persistent poverty pose challenges to ongoing expansion. तो यूएसए का नॉमिनल जीडीपी 3 इंडिया यूके को सरपास कर दिया. फाइन. तो ऑब्जर्वेशन, जो मेन ऑब्जर्वेशन है कि जीडीपी ऑफ यूएसए नॉमिनल पीपी रिमेन्स द सेम बिकॉज रेफरेंस करेंसी इज यूएस डॉलर. इट हैज द हाईएस्ट नॉमिनल जीडीपी. तो जो जीडीपी है यूएसए का नॉमिनल है, नॉमिनल जीडीपी यूएसए का और पीपी में, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में सेम है, अराउंड $30 ट्रिलियन. इसका एक रीजन ये भी है कि रेफरेंस करेंसी जो है यूएस डॉलर है, क्योंकि रेफरेंस हम उसी को बेसिक मान रहे हैं, लेकिन महंगाई तो है वहाँ इंडिया से ज़्यादा ज़्यादा खर्चे हैं. नॉमिनल जीडीपी ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ब्राजील, रसिया, कनाडा टू बी ऑब्जर्व्ड. Well, the GDP of same country measured in terms of purchasing power parity. तो इन लोग का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो थोड़ा बेटर है. नहीं, चाइना, जापान, ये सब हमने ऑब्जर्व तो कर ही लिया है. तो चाइना का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो $39.44 ट्रिलियन है, इंडिया का यूएसए का 30 है, और इंडिया का 19 है. इंडिया थर्ड, $17.36 ट्रिलियन. ठीक है. नाउ लेट्स कंपेयर. हम लोग जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में हमने कंपेयर कर लिया. आई एम सॉरी. ठीक है. नाउ वी शैल बी कंपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज. तो जैसा कि हमने कहा यूएसए का जो है 0 पॉइंट, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक में होता है, 0 और 1. ठीक है. इधर जितना हुआ वो खराब हुआ, इसके पास जितना गया वो ज्यादा अच्छा है. 0 से 1 तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन लोग का जो इंडिसेस है 0.9 के अराउंड है. तो आप देख सकते हैं 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, जर्मनी, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस. ठीक है. इन सब का 0.9 है. लेकिन आप अगर इंडिया को देखोगे तो इंडिया का 0.64 है, बहुत बिलो देन दैट ऑफ चाइना. चाइना का 0.75 है, यूएसए का 0.9 है, इटली का 0.88 है, ब्राजील जो ब्रिक्स का आता है 0.75, चाइना का 0.75, 0.9 दिस डेवलप्ड कंट्री, कनाडा. देन अगेन रसिया थोड़ा सा कम डेवलप लेकिन 0.8, और इंडोनेशिया 0.694, इंडिया का 0.64. तो यानी इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज में भी इंडिया परफॉर्मेंस नॉट कमेंडेबल. 0.9 नाउ इट सीम्स लाइक ए डिस्टेंट ड्रीम्स, बट अभी जो टारगेट है 0.7 है. तो कुछ हम इसका एसडीआई का रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि एसडीआई में जो है 4 इंडिकेटर्स होते हैं और 0 से 1 के बीच में है. तो इसको जो अर्स्टवाइल पाकिस्तान आप बांग्लादेश है जो महबूब उल हक है, इसने ही इसको डेवलप किया था. इट कैन यूज टू एग्जामिन वेरियस पॉलिसी चॉइसेस ऑफ नेशन. देखो अगर दो कंट्री
में अगर सेम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल जीडीपी बाय पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का ये रियल पिक्चर दिखाए कि हर एक इंसान को उतना ही मिलता है, क्योंकि हो सकता है ड्यू टू इनइक्वालिटी सम पर्सन विल हैव मोर मनी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द थिंग दैट कैन इवेलुएट द ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स। तो लिमिटेशन है कि ओनली पार्ट ऑफ व्हाट ह्यूमन डेवलप, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट। A human development report provides additional composite indices to evaluate other life aspects. इनइक्वालिटी इशू को भी कंसिडर कर सकता है, जेंडर डिस्पैरिटी को भी कंसिडर करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें डायमेंशन क्या क्या है जिसपे इसको मेजर किया जाता है? तो पहला हेल्थ, हेल्थ को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। देन नॉलेज यानी एजुकेशन को इंक्लूड कर रहे हैं। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेजर कर रहे हैं। तो इंडिकेटर्स क्या क्या है? अब हेल्थ को हम कैसे मेजर करेंगे? तो हेल्थ को हम इस प्रकार से मेजर करेंगे कि वी विल सी एट द बर्थ व्हाट इज इट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कब तक जिएगा। देन नॉलेज, एजुकेशन, so how education will be evaluated? So we will measure two indicators, we will measure two parameters. There are two indicators, that is expected year of schooling and mean year of schooling. Then gross national income per capita in terms of purchasing power parity, जो PPP हमने कहा है, तो इससे पता चलता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि हम वही जैसा बास्केट ऑफ गुड्स बोला कि हम इसमें एक सेब अपने लिए खरीद पा रहे हैं, एक सब्जी खरीद पा रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक खरीद पा रहे हैं, एक पानी खरीद पा रहे हैं, और इतने में मेरा हो जा रहा है 10 रुपए में। इन यूएसए में तो इतने में नहीं हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर वी आर अहेड ऑफ दैट कंट्री। Why I am always talking about USA? USA is already ahead in terms of PPP. Let's talk about UK. ठीक है, UK में so gross national income per capita, purchasing power parity, gross national income index. So three things: first is health, long and healthy life, then it's about knowledge or education, then it's about decent standard of living, health, expected life expectancy at birth, life expectancy at birth, life expectancy, then mean year of schooling, expected year of schooling, then gross national SOL means decent standard of living. Decent standard of living can be measured by gross national income per capita, that is purchasing power parity, GNI index, human development index। तो अब देखो 0.5 है तो लो डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट है, 0.5 से 0.69 है तो मीडियम है, हाई है तो 0.7 से 0.9, वेरी हाई ह्यूमन 8 से ऊपर 0.8। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट की फाइंडिंग्स अबाउट इंडिया रैंक इंप्रूवमेंट। सो पहले 2021 में इंडिया का रैंक 135 था, रैंक 2022 में इंप्रूव हो गया 134 हो गया, वाह वाह बहुत अच्छा। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 0.644, पहले 0.663 था, अब 0.64 हो गया, वाह वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो जैसा कि हम हेल्थ के बारे में, हेल्थ को इससे मेजर करते हैं, हेल्थ का इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो पहले 67.2 था, अब 67.7 है, वाह वाह बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है, पहले 11 साल ही एक्सपेक्ट किया था कि ये बच्चा 11.9 साल ही पढ़ेगा, 11 साल 9 महीना पढ़ेगा, अब 12.6 ईयर्स हो गया, वाह वाह बहुत बढ़िया। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज टू 6.57 ईयर्स। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा विच मेजर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, it has improved from $6,951 to $6,542. Oh, it has improved to $6,951 from 6,542। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब जस्ट टारगेट है कि हम लोग जो है 0.7 को अचीव करें। अभी इंडिया का 0.64 ही पॉइंट स्कोर है, 0.64। हाँ, ये कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट में कि पहले 0.63 था, अब 0.64 हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 0.5 या पॉइंट सम बढ़त हुआ है, 6.67, या मीन ईयर ऑफ अराउंड 12, इट वाज अराउंड 11। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देयर इज डिसमल इम्प्रूवमेंट। कंपैरिजन विथ नेबरहुड, अगर हम अपने पड़ोसियों से कंपेयर करें तो इंडिया का रैंक इज बिलो चाइना। चाइना का रैंक है 75, इंडिया का रैंक है कितना 134। 134 2022 में ही आया है लेटेस्ट रिपोर्ट। श्रीलंका का 78, मालदीव्स
भूटान, भूटान से भी हम पीछे हैं, म्यांमार, नेपाल। अब हम किससे आगे हैं? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आगे। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आगे, लेकिन बांग्लादेश से पीछे, भूटान से पीछे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ है इंक्रीज 67.7 ईयर्स, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.6 ईयर्स, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 66, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.57 ईयर्स, मतलब 6 साल 7 साल तक बच्चे पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल। तो नाउ वी विल बी कंपेयर इंडिया ऑन द other parameter. Now we will be talking about graph 3, and here again we will do GDP comparison, but India will be compared with its neighbors यानी ये उनके पड़ोसियों से। तो 2024 में ये पहला पॉइंट है, इंडिया जीडीपी इज significantly larger than that of its neighboring countries with GDP of $3.89 trillion. दिस इज आई थिंक इट्स रियल जीडीपी। तो हम लोग यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी का ही बात करेंगे। तो 4.27 ट्रिलियन डॉलर। तो जीडीपी कंपैरिजन ऑफ इंडिया विथ इंडिया एंड इट्स नेबर्स इन 2024, इंडिया जीडीपी इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन दैट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, $4.27 ट्रिलियन। इंडिया जीडीपी इज लार्ज, चाइना जीडीपी इज 4.7 टाइम्स लार्जर। और चाइना का जीडीपी कितना है? $19.3 ट्रिलियन। इंडिया जीडीपी पर कैपिटा अभी लोअर है चाइना से। इंडिया का $2698, चाइना का 12,000। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि देखो डेटा जो है इधर उधर हो सकता है, वो तो हमेशा चेंज होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपडेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन बात है जो रहेगा फिलहाल, दिस कंट्रीज हैव वेरिंग पॉपुलेशन, देयरफॉर नॉमिनल जीडीपी कैन नॉट बी एक्यूरेट मेजर for comparison. Therefore, we introduce the concept of per capita income, which is obtained by dividing the nominal GDP with total population of the country. So, US has highest per capita income $65,000. अब देखो नॉमिनल जीडीपी में डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से तो कम आएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा मनी है, कुछ लोगों के पास कम है। वेल्थ वेल्थ इनइक्वालिटी को भी बताएगा, पर कैपिटा इनकम से पता चलेगा। In 2023, India nominal GDP was 3.57 trillion. GDP per capita $2,940. GDP per capita rank was 119 per capita. ठीक है, 11 rank according to in the world. China nominal GDP in 2024 was $18 trillion. 19 हाँ 9 अभी 19 है। ये तो यहाँ पे जो मेनली जो हम कहना चाह रहे हैं कि अभी तो बस चाइना से कंपेयर हुआ है, बाकी तो चाइना से कंपेयर में हमें ये समझ ध्यान रखना है कि इंडिया जीडीपी इज लार्ज, चाइना जीडीपी इज 4.7 टाइम्स लार्जर, और चाइना जीडीपी इज $19.3 ट्रिलियन, इंडिया का जीडीपी इज 4.27 ट्रिलियन, ठीक है। बट इंडिया जीडीपी अगर पर कैपिटा बात करेंगे वो भी लोअर है चाइना से। इंडिया का जीडीपी $2698 है और चाइना का 12,000। इंडिया का अराउंड 2,000, इंडिया का चाइना का 12,000, ठीक है। Now we will compare graph 3. We will present graph 3 जीडीपी कंपेयर इंडिया एंड नेबर्स, वही तो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना का जो है यहाँ पे वैल्यू $19.5 ट्रिलियन,
और देखो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स नॉमिनल जीडीपी. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? नॉमिनल जीडीपी. एंड ग्रीन जो है इट रिप्रेजेंट्स पर कैपिटा इनकम. एंड येलो लाइन हेयर जो है ये जो ऐसे से जा रहा है ये जीडीपी ग्रोथ बता रहा है. तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ मतलब पिछले पिछले साल से लेके इस साल किसका ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है? तो ब्लू लाइन तो ठीक है, चाइना जो है यहाँ पे टॉप कर रहा है बेस्ट नॉमिनल जीडीपी 19.53 ट्रिलियन. इंडिया का सेकंड प्लेस है अपने नेबरिंग कंट्रीज में 4.27 ट्रिलियन. जो फैक्ट हमें कंसिडर करना है कि इन सब का पॉपुलेशन अलग अलग है. नॉमिनल जीडीपी जो करंट मेजर नहीं हो सकता. वी इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हिच इज ऑपरेटेड बाय नॉमिनल. यूएस हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम $65,000. हाँ, तो यूएसए का हाईएस्ट पर कैपिटा है 65,000. ग्रीन लाइन. अभी देखो पर कैपिटा इनकम का बात करें, चाइना हैज पर कैपिटा 10,000, इंडिया का 2,000. वो बात की ही थे. पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ, तो इंडिया चाइना का अराउंड 10,000, इंडिया का क्या है अराउंड 2,500. ठीक है, या 10,500 या 12,000 है अभी का देखा जाए तो. ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट रिप्रेजेंटेटिव और स्टडी अराउंड 7%. अब देखो जीडीपी ग्रोथ रेट का हम बात करें तो देखो यहाँ पे 7 अराउंड 7 है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में थोड़ा डिप देखा गया. नेपाल में थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे 7.9 है. फिर भूटान में थोड़ा डिप देखा गया, थोड़ा सा उठा है. बांग्लादेश में ठीक हो रहा था, लेकिन अभी जो ये मिलिट्री राइज हुआ है तो यहाँ भी अभी डाउनफॉल देखा गया है. Now we will be discussing about gross state domestic product. ग्रॉस स्टेट. अब बाहर तो हमने बहुत कंपैरिजन कर लिया, अब हम देश के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि देश के अंदर कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, अब हम करेंगे देश के अंदर कंपैरिजन अमॉन्ग द स्टेट्स. ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑफ इंडियन स्टेट्स. तो महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमॉन्ग 33 इंडियन स्टेट्स. और यूटी इंडियन स्टेट्स को मिला के 33 हुआ, और उसमें जो महाराष्ट्र का है वो हाईएस्ट जीडीपी है. जो कहाँ, पहले गुजरात बना ले यहाँ. हाँ, तो जो एमएच का है वो हाईएस्ट जीडीपी है. महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट्स 13.46 13.46% of India GDP at current price. Then तमिलनाडु करंट प्राइस में देखो मार्केट प्राइस इंक्लूड हो जाता है और इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है. कांस्टेंट प्राइस हो गया, वहां पे मार्केट प्राइस इंक्लूड नहीं होता है. फॉलोड बाय तमिलनाडु. तमिलनाडु में 9% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में. देन यूपी इज द थर्ड 8.5%. अदर स्टेट्स इन टॉप 5. उसके बाद देखो पांच तो ध्यान रखना चाहिए. देन कर्नाटका अराउंड 8, गुजरात भी अराउंड 8. यूपी में जो है 8.51, ये भी 8 है, लेकिन यूपी ऊपर है. सबसे पहला नंबर पे आता है एमएच 13.46, देन तमिलनाडु 9.03, देन यूपी 8.51%. इंडिया लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है, ये नंबर 7 पे है, वेस्ट बंगाल से भी पीछे है. और पुअरेस्ट स्टेट जो बिहार है वो 15वां नंबर पे है. दिल्ली जो है 12वां नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी. तो टॉप 5 स्टेट्स शेयर 47% ऑफ इंडिया टोटल इकोनॉमी. जो टॉप 5 स्टेट्स है वो अराउंड 47% इंडिया की इकोनॉमी 5 कंट्रीब्यूट करता है. 5 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर 31%. जो साउथ इंडिया के जो 5 स्टेट है, ठीक है, तो जो 5 स्टेट्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, 31%. देन नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट अकेले का हमें कंट्रीब्यूट करती है
8 स्टेट जो है इसमें सिक्किम को भी इंक्लूड किया गया, तो 3.04%। अंडमान निकोबार का लोएस्ट जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद जो इन्होंने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, जो 8 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट, ये 3% से कंट्रीब्यूट करते हैं। जो टॉप 5 स्टेट्स है, यू फर्स्ट का महाराष्ट्र, देन यूपी, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन यूपी, देन कर्नाटका, गुजरात। तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं 47.55%। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट 13.46% of India's GDP, then Tamil Nadu around 9%, UP around 8%, Karnataka, Gujarat 8%, यूपी यूपी भी अराउंड 9%, 0.5 हो गया। तो थोड़ा और बढ़िया से बता दूं मैं, इंडियन स्टेट्स जीएसडीपी, तो कॉन्स्टिट्यूशन रेट 1000, 3 लाख, तो 20 लाख। ठीक है, तो एबव 20 लाख, एबव 20 लाख ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कर्नाटका, ये तो हमारा एमएच हो गया 1, हमारा तमिलनाडु हो गया 2, हमारा यूपी हो गया 3, देन कर्नाटका इज 4, देन गुजरात इज 5। आर यू श्योर? या ठीक है, गुजरात इज 5। 20 20 लाख, 20 लाख करोड़ से ऊपर, वो 20 लाख करोड़। अब 1 लाख 100,000 10 लाख से 20 लाख के बीच में जो आता है वो ये सब कंट्रीज हो गए, ये स्टेट्स हो गए, सॉरी, ये स्टेट, हरियाणा भी हो गया, दिल्ली भी आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर हो गया तेलंगाना और आंध्रा, केरला, 10 लाख से 20 लाख के बीच में आता है। और उससे भी फिर नीचे आ गया ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये बंगाल भी 10 लाख से 20 लाख के बीच में आता है। बिहार हो गया 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 5 से 10 के बीच में, ये सब 10 से 20, 20 के ऊपर, 20 करोड़ के ऊपर, और ये सब 10 से 20 के बीच में। जो पूरे कंट्री, यहाँ पूरे स्टेट हो गया बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये नॉर्थ ईस्ट का आसाम, 5 लाख से 10 लाख करोड़ रुपीस जीएसडीपी है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो बॉर्डर एरियाज है इनका बिलो 50,000 करोड़, 1 लाख से 5 लाख करोड़। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का ये पार्ट। तो हमने तो ऑब्जर्वेशन बता ही दिया। तो सी डार्कर रीजन्स इन द मैप इज हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो जो डार्कर रीजन ये हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। और लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिली स्टेट्स हो गए, गोवा, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, असम हो गया, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या हमने बोल ही दिया। अब कंपेरिजन इंडियन स्टेट्स, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें, तो इंडिया का तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.64। ठीक है, इंडिया, ठीक है। और तो सबसे, हाँ, फर्स्ट नंबर पे केरला आ रहा है, उसका पंजाब, ओए, ठीक है। तो human development index varies significantly over Indian states, with some states like Kerala and Goa they consistently rank high, while Bihar, Uttar Pradesh they lag behind. देख लो, in terms of GDP contribution, UP is much ahead, but in terms of human development index, it lags behind, and that's all because of high population. तो ये देखो, पंजाब भी ऊपर ही है, जो नीचे जो है ये आसाम हो गया, फिर यहाँ ये मध्य प्रदेश अराउंड 0.6, 0.6 के पास उड़ीसा भी है, और 0.67 के बीच में बिहार है, छत्तीसगढ़ 0.6 पे है, मध्य प्रदेश 0.6 पे है, झारखंड
0.7 के पास है। राजस्थान 0.7 के पास है। झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 0.6 के ही पास है। असम 0.6 से ज्यादा पास है। आंध्र प्रदेश का अच्छा है, 0.7 पे है। इंडिया का 0.64 है। तो गोवा एंड दिल्ली ऑफ एन लीड इन एचडीआई रैंकिंग। गोवा जो है, दिल्ली और केरला, गोवा, Delhi, they lead in HDI ranking. It demonstrates high level of human development that we have already talked about. Health, education, income means a high expected year of living, low maternity mortality, then education. And conversely, the states like Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, they rank lower, indicating lower level of human development. India has high India has HDI value of नहीं, ये ओल्ड डेटा है, 0.644 है। एसडीआई ऑफ केरला जो है बहुत अच्छा है। देन पंजाब और लो है उड़ीसा का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का। ये तो हमने एक ही बात को कितना हमारे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, दिस चैप्टर वाज just gives you basic understanding and we must know these things. We should know the comparative economy. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए so that we can read further, we can understand economy further, and this will also help you understand when you read newspapers. It will increase the speculation, how to speculate on various questions that are asked. It will help you to speculate various uh, questions that are asked in economy, and moreover it will help to increase your understanding in economy and your approach will be improved. Okay, and you can watch my lecture more than one times to understand better, and you can also download this PDF from my app. Fine. So this is Siddhant Saurabh and signing off.